إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین سامعین، آج کے خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی عشرہ ذی الحج، ماہ ذی الحج کا جو ابتدائی عشرہ ہے، شروع کے جو 10 دن ہیں، ان سے متعلق کیا فضائل و مسائل ہیں، انہیں پر انشاءاللہ بات ہوگی. اس موضوع کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا یہ کہ اس عشرے کی یعنی ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ یہ کہ اس عشرے اور ان دنوں کے مسنون اعمال کیا ہیں، خاص عبادتیں کیا ہیں جو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں. اور تیسرا حصہ یہ کہ اس عشرے کی بدعت و خرافات کیا ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو دین کے نام پہ کی جاتی ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے. تو یہ 3 حصوں پر انشاءاللہ آج کا یہ خطبہ، آج کا یہ موضوع مشتمل ہوگا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عشرے کی یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے. تو ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں کی خاص فضیلت ہے، اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی خاص فضیلت ہے. تو بعض اہل علم نے ذی الحج کے ان 10 دنوں کی فضیلت کو رمضان کے ان آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ بہتر بتایا. یعنی رمضان کے وہ آخری 10 دن بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ رات اور دن کا مسئلہ ہے، یعنی اگر ہم راتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، لیکن اگر ہم دنوں کی بات کریں تو ذی الحج کے جو 10 دن ہیں وہ رمضان کے ان دنوں سے بہتر ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جتنی بڑی بڑی عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، پورے سال میں کوئی ایسا 10 دن آپ کو نہیں ملے گا جس میں امہات العبادات اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے. عبادتوں کا اتنا بڑا پیکج جو ان 10 دنوں میں ملتا ہے، اور اس کا جو اتنا بڑا ثواب بتایا گیا ہے، وہ اس طرح کی عبادتیں نہ کسی اور دنوں میں ہے، نہ اس طرح کا ثواب کسی اور دن میں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے. 4 اعتبار سے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. یعنی اس عشرے کی فضیلت میں، ان 10 دنوں کی فضیلت میں ہم 4 باتیں کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ 10 دن حج کے مہینوں میں آتے ہیں. قرآن نے کہا نا الحج اشہر معلومات،
تو حج کے جو مہینے ہیں، حج کے جو ایام ہیں، حج کے جو دن ہیں، ان کی خاص فضیلت ہے. تو یہ دن حج کے دنوں میں آتے ہیں، حج کے جو مہینے ہیں اس میں یہ 10 دن آتے ہیں، اس اعتبار سے ان کی فضیلت ہوگی. اور ان دنوں کی فضیلت میں دوسری بات یہ کہ یہ حرمت کے مہینوں کے ایام ہیں. حرمت کا مہینہ مطلب سال کے جو 12 مہینے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. قرآن نے کہا منہا اربعۃ حرم، کہ سال کے 12 مہینے 4 ماہ حرمت کے. ان 4 مہینوں کی اہمیت باقی مہینوں سے الگ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن نے تو کہا کہ 4 مہینے، لیکن قرآن نے گنایا نہیں. لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کو گنا دیا، اور اس میں یہ ذی الحجہ بھی ہے. تو یہ حرمت کے مہینے، یعنی حرمت کے مہینے، یعنی کہہ لیجیے کہ یہ 10 دن حرمت کے. حرمت مطلب احترام، قابل احترام، قابل عزت، جس کا آپ لحاظ کریں. تو یہ 10 دن ایسے ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے، جن کی عزت ہونی چاہیے، جن کا ہمیں لحاظ کرنا ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کی کہ یہ 10 دن ایام حرمت کے. ان 10 دنوں کی فضیلت میں تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 دنوں کی، 10 راتوں کی. تو اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اپنے آپ میں وہ چیز اہمیت والی ہو جاتی ہے. تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. یہ تیسری وجہ ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کی. ان 10 دنوں کی فضیلت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی جو فضیلت بتائی ہے وہ فضیلت کسی اور دن میں نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھوں گا آگے چل کے، یہاں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 10 دنوں میں جو فضیلت مل سکتی ہے کسی بھی نیک کام کی، وہ نیک کام کسی اور دن میں کریں تو اتنی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی، چاہے وہ رمضان کی دن کیوں نہ ہو. اتنی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی جو ان 10 دنوں میں ملے گی آپ کو. تو یہ 4 اعتبار سے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. پھر سے دوہرا دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ حج کے ایام ہیں، دوسری بات یہ کہ حرمت کے ایام ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کی سب سے زیادہ فضیلت بتائی. یہ ہمارے موضوع کا پہلا حصہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ یہ کہ اب ان 10 دنوں میں کرنا کیا. جب اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ان 10 دنوں کی عبادتیں کیا ہیں، ان 10 دنوں کے اعمال کیا ہیں، خصوصی اسپیشل ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی نماز ہے، جو روٹین کی عبادتیں ہوتے چلتی رہیں گی، لیکن کچھ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں اضافی عبادات بھی بتلائی گئی اور ان کو بھی ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ان کی 2 قسمیں. ان 10 دنوں میں جو ہمیں کرنا ہے ان اعمال صالحہ کی بھی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ان اعمال کی جو پورے 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہوتا ہے ڈیلی، یعنی پورے 10 دنوں تک جاتے ہیں وہ عمل. اور دوسری قسم ان اعمال کی ہے جو ان 10 دنوں میں کسی دن سے متعلق ہیں، یعنی اس کے چند دنوں میں ہی وہ ہوتے ہیں، پورے 10 دن پر محیط نہیں ہوتے. یہ 2 قسمیں ہیں ان 10 دنوں میں جو ہم اعمال کرتے ہیں. پہلی قسم کہ پورے 10 دنوں تک چلتی رہے گی، اور دوسری قسم جو ان 10 دنوں کے بعض دنوں سے متعلق ہے، پورے 10 دنوں کو شامل نہیں. پہلے قسم پر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ وہ اعمال جو پورے 10 دنوں میں ہم کو کرنا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان 10 دنوں تک ہمیں اپنے بال ناخن نہیں کاٹنا.
सही मुस्लिम की हदीस है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखलतिल अश्र, जब जिलहिज का ये अशरा दाखिल हो जाए, शुरू हो जाए, ये 10 दिन शुरू हो जाए, तो फला यखदन नादुकुम, तो तुम में से कोई शख्स ना क्या ना करे, मिन बशरिही व अज़फारिही शैया, अपने नाखून अपने बाल काटना बंद कर दे। तो इन 10 दिनों में जो हजरात कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा है कि ये उनके लिए वाजिबी हुक्म है, इस्तेहबाबी नहीं, वाजिबी हुक्म है कि अगर उन्हें कुर्बानी करनी है तो उनको इन 10 दिनों तक अपने नाखून अपने बाल वगैरह, कहीं के भी बाल हो, जेरे नाक के कोई भी बाल हो, आप उससे पहले सफाई कर लें, लेकिन इन 10 दिनों में जिस्म के किसी हिस्से के बाल को या नाखून को नहीं छेड़ना। बाज़ उलमा ने कहा है कि जो यानी घर का कोई एक आदमी कुर्बानी करता है, सबकी तरफ से होती है, तो जो शख्स घर का अगुआ है जो कर रहा है कुर्बानी, उसके लिए तो कंपलसरी है। बाकी घर के अफराद के बारे में भी अल्लाह ने लिखा है कि वो भी अगर इस पे अमल करें तो कोई बुराई नहीं। हत्ता कि सुनन नबी दाऊद की एक रवायत है, बाज़ उलमा ने उसको ज़ईफ कहा, लेकिन उसे ही रवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि अगर तुम्हारे पास कुर्बानी नहीं है तो जिस दिन लोग कुर्बानी करेंगे और अपने बाल नाखून काटेंगे, उस दिन तुम अपने बाल नाखून काट लो तो तुम्हें भी कुर्बानी के सवाब मिलेंगे। उसके बाद उलमा ने सवाल किया है कि ये शख्स भी 10 दिनों तक अपने बाल नाखून छोड़े रहेगा तभी तो काटेगा, तो जो कुर्बानी नहीं कर रहा वो भी इसे अमल कर सकता है, लेकिन उसके लिए वाजिब नहीं, कंपलसरी नहीं। जो कुर्बानी कर रहा उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन जो कुर्बानी नहीं कर रहा उसके लिए जरूरी नहीं है कि अपने बाल नाखून छोड़ दे, लेकिन अगर वो छोड़ देता है तो बड़े सवाब का काम है, अच्छी बात है। तो ये पहला अमल है जो इन पूरे 10 दिनों में हम अंजाम देते हैं, तो क्या है, बाल नाखून छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अमल जो हम इस पूरे 10 दिनों में अंजाम दे सकते हैं वो है रोजा रखना। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है, बाज़ उलमा ने इससे कलाम भी किया कि ज़ईफ है, लेकिन सही बात जो मालूम होती है कि हदीस सही है, इस पे अमल कर सकते हैं। सुनन नबी दाऊद बहुत सारी कुतुब हदीस में रवायत मौजूद है, अज़वाज मुतहरात में से बात बयान फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्अ ज़िलहिज्जा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिनों का रोजा रखते थे। 10वां तो ईद का दिन उस दिन रोजा तो है, 10वां इसलिए क्योंकि ईद का दिन, ईद के दिन रोजा नहीं है, लेकिन बाकी 9 यानी पूरे अशरे में इन 9 दिनों तक हमें रोजा रखना, बल्कि 10वें दिन में भी रोजा तो नहीं है, लेकिन ईदगाह हमें जाना होता है बगैर कुछ खाए पिए, रोजा नहीं उसको कहते हैं, लेकिन वहां पे भी एक चीज है कि उस दिन भी कुर्बानी के बाद ही खाने की शुरुआत करनी। तो ये दूसरा अमल है इन 10 दिनों में कि इन 10 दिनों का हम रोजा रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत है रोजा रखना कि आप करते थे, अमलन सबूत है। कौलन भी अल्लाह के नबी, आगे आपको सामने हदीस पेश करूंगा, कौलन भी उसका सबूत मिलता है। तो ये दूसरा अमल है जिस पूरे 10 दिन में हम अंजाम दे सकते हैं, वो है जो है रोजा रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा अमल जो हम इस पूरे 10 दिनों में अंजाम दे सकते हैं और अंजाम देना चाहिए, वो है तकबीरात, तकबीरात पढ़ना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा, और भी बहुत सारे सेके हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं। ये सबसे जो कवी सनद है, सबसे मजबूत सनद से जो अल्फाज हैं वो यही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा, और दूसरे अल्फाज भी दूसरे से ये जो तकबीरात हैं ये हमें जिलहिज का चांद देखते ही शुरू कर देना चाहिए। हमारा हाल ये होता है कि वो ईद के दिन पढ़ते हैं बस, बाकी नहीं पढ़ते।
नहीं, इसको पूरे 10 दिन में पढ़ना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत शेख इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सही बुखारी में मुअल्लक़न दर्ज की है और सही सनद से भी दूसरी कुतुब में मौजूद है कि वो बाजारों में भी जाते थे, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला, वहां भी वो लोग तकबीरात पढ़ते थे। तो इन 10 दिनों में चलते फिरते उठते बैठते जहां भी हमें मौका मिले हमें तकबीरात पढ़ते रहना चाहिए। सुबह आप बेदार होते हैं, चलो थोड़ा टाइम मिला पढ़ लिया, दोपहर में, शाम में, रात में, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और ये सिर्फ 10 दिन तक नहीं है, बल्कि ये 10 दिन के बाद भी हमें इसको कंटिन्यू रखना है पूरे अय्याम तशरीक तक। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया कि अय्याम तशरीक का के आखिरी दिन तक हमें तकबीरात कंटिन्यू रखना है। यानी 10 दिन से भी आगे जा रही है, ये अमल आगे जाएगा, कुर्बानी के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा हमारा अमल तकबीरात का। अय्याम तशरीक, अय्याम तशरीक किसको बोलते हैं? अय्याम तशरीक कुर्बानी के बाद के जो 3 दिन है उनको अय्याम तशरीक बोलते हैं। कुर्बानी जिस दिन हमारी कुर्बानी होगी, ईद का दिन है, उसको छोड़ के आगे जो 3 दिन है उनको बोलते हैं अय्याम तशरीक। तो वो 3 दिन अय्याम तशरीक का जो आखिरी दिन है, शाम मगरिब तक हमें ये तकबीरात कंटिन्यू रखना है। तो तीसरा अमल जो हम इन 10 दिनों में कर सकते हैं वो तकबीरात हैं। तकबीरात के ताल्लुक से जो है ये ध्यान में रखें अच्छी तरह से कि सिर्फ ईद का दिन नहीं है जो हमने समझ के रखा है कि उसी दिन तकबीर हम कहते हैं, बाकी कहीं सुनाई नहीं देता तकबीर, तो कोई कहता है ऐसा नहीं है, रोजाना कहना चाहिए जब तक ये 10 दिन चल रहा है। अच्छा, ईद के दिन वो भी नमाज पढ़ के लोग उसको भी बंद कर देते हैं, भाई वो कंटिन्यू रहना चाहिए तशरीक के अंतर, ना हम ईद से पहले पढ़ते हैं ना ईद के बाद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना। तो तीसरी चीज है जो हम पूरे 10 दिनों में हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथी चीज जो इन पूरे 10 दिनों में हम कर सकते हैं वो कोई भी आम इबादत है, कोई भी आम इबादत, जैसे कुरान मजीद की तिलावत है, 10 दिन तक आप खास वक्त निकाल के पढ़ें, सदका खैरात है, तस्बीह व तहलील है, जो भी नेक अमल है। वजह क्या है? वजह आप हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं, जो शुरू में मैंने कहा था, जिसकी बुनियाद पर मैंने चौथे नंबर पर इन दिनों की फजीलत बताई थी, मैंने कहा तभी आगे वह हदीस पढ़ता हूं। तो ये हदीस है अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र इल्ला रजुलन खरजा बिनफ्सिही व मालिही फी सबीलिल्लाह फलम यरजा मिन शै। ये मुस्लिम में बहुत सारी कुतुब हदीस में ये रवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अय्यामिन, पूरे साल के कोई भी दिन ऐसे नहीं है, अल अमल सालिहु फीहिन्ना, कि उन दिनों में किए जाने वाले आमाल, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी कि पूरे साल के कोई भी दिन ऐसे नहीं है कि उनमें जो नेकियां की जाती है उन नेकियों का सवाब मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र, इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियों के सवाब से ज्यादा हो। ये बहुत अहम हदीस और सबके नजदीक ये हदीस सही है, इस हदीस में कोई मसला भी नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन 10 दिनों में जो आप नेकियां करें उन नेकियों का सवाब, उनका मुकाबला साल के किसी भी दिन में की जाने वाली नेकियां नहीं कर सकती हैं। हमारे ज़हन में क्या बैठा हुआ कि रमजान में जो नेकियां करते हैं उससे बड़ा सवाब किसी दिन में नहीं, ये 10 दिन का जो सवाब वो रमजान से भी ज्यादा है। रमजान आता है, बेशक हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हदीसों पर हमारा ईमान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पैरवी करने वाले हैं, तो इन 10 दिनों में हमारी इबादतों का ज़ौक़ शौक़ रमजान से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका सवाब उससे भी ज्यादा है।
बल्कि एक और चीज आप देखें, सदका खैरात, हमने सदका खैरात के लिए या ज़कात के लिए, फर्ज ज़कात के लिए भी, नफली ज़कात के लिए भी हमने रमजान का दिन जो है तय कर दिया कि उस दिन में उनमें हम ज़कात निकालेंगे। फर्ज ज़कात भी निकालते हैं और नफली ज़कात भी रमजान में निकालते हैं। ये बात याद रखना, शेख अब्दुल हुसैन ने ये बात कही है कि अगर आप इन 10 दिनों में ज़कात निकालें, इन 10 दिनों में नफली सदका खैरात करें, तो इन दिनों में सदका खैरात करने का जो सवाब मिलेगा रमजान में सवाब नहीं सकता ना, रमजान में सवाब नहीं मिल सकता। इन 10 दिनों में आपको किसी गरीब की मदद करनी है, किसी को सदका देना है, किसी की माली मदद करनी है, तो रमजान से बेहतर ये 10 दिन, ये 10 दिन अल-अमल सालिह फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह, इन दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान मजीद की तिलावत रमजान में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दिनों में कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो उसका सवाब रमजान वाली तिलावत से बढ़ के मिलेगा। इसलिए हमें इस हदीस पर ईमान लाना चाहिए और उसके मुताबिक इस पूरे 10 दिनों में, पूरे 10 दिन हम कुरान मजीद की तिलावत करें, 10 दिन सदका खैरात की तौफीक अल्लाह दे रहा है करें, 10 दिन तहज्जुद पढ़ें, 10 दिन जो भी नेकियां हमसे हो सकती हैं पूरे 10 दिन में करते हैं। ये हम बात कर रहे थे उन आमाल की, उन इबादतों की जिन्हें हम पूरे 10 दिनों में कर सकते हैं। तो हमारे मौजू का दूसरा हिस्सा चल रहा था कि इन 10 दिनों में हम करें क्या। इस मौजू को मैंने 2 किस्मों में बांटा। एक किस्म वो आमाल जो पूरे 10 दिनों में करना है, और मैंने आपको 4 बातें बताई। इन 10 दिनों में जो करना वो 4 है। नंबर 1 दोहरा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, इस पूरे 10 दिनों में हमें बाल नाखून को नहीं छेड़ना। नंबर 2, 9 दिनों का रोजा रखना, 10 नहीं ले सकते क्योंकि ईद का दिन। और नंबर 3, इन पूरे 10 दिनों में तकबीरात पढ़नी है, बल्कि अय्याम तशरीक तक जाना है, कंटिन्यू करना है। और नंबर 4, जो भी नेक अमाल है, सदका खैरात, नमाज, तहज्जुद, नवाफिल, कुरान की तिलावत, ये पूरे 10 दिनों में करते रहना। तो ये पहली किस्म है उन अमाल की जो पूरे 10 दिनों में हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी किस्म, यानी इन 10 दिनों में वो अमाल जो हम पूरे 10 दिनों में नहीं करते हैं लेकिन उसके बाद दिनों में करते हैं। उसमें सबसे बड़ा अमल हज है, लेकिन वो वो तो हुज्जाज जो वहां है वो करेंगे, इससे हम उससे ज्यादा बात करेंगे नहीं। कुछ खास दिन है जिसमें हज का फरीजा अदा किया जाता है, लेकिन वो टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे ना, पूरा टाइम तो उसमें चला जाएगा। हज, और यहाँ हज की ट्रेनिंग होती है, हज के मसाइल उलमा बयान करते हैं, आप सुनते रहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अमल है वो कुर्बानी। दूसरा जो अमल है कुर्बानी। कुर्बानी के मसाइल पर भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग ही मौजू है। ये जो 10वीं तारीख है उस दिन हम कुर्बानी करते हैं, और वो अमल भी कंटिन्यू रहता है, यानी 10 दिन तक रुकता नहीं है। उसके बाद 4 दिन तक हम कुर्बानी कर सकते हैं। बाद उलमा कहते हैं 3 दिन, लेकिन सही बात यह है कि 4 दिन तक हम कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये दूसरा अमल है जो इन 10 दिनों के बाद दिनों में हमें करना होता है, कुर्बानी। तीसरा जो अमल है वो है, बहुत ही अहम है, अरफा का रोजा। अरफा का रोजा हमने जो बात की ना शुरू में कि 9 दिनों का हम रोजा रखेंगे, अगर उसको कोई अमल करता है तो जाहिर सी बात है कि अरफा का रोजा भी इंक्लूड है इसमें। लेकिन अगर कोई उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि 10 दिनों का रोजा रखे, तो कम से कम अरफा का रोजा तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। अरफा का रोजा उसे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिरा अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। कितनी बड़ी फजीलत आप सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरफा के रोजे के बारे में मेरा ख्याल है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो एक दिन का रोजा रख लेगा अरफा का, उसके पिछले 1 साल की गुनाह और एडवांस में अगले भी 1 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे।
पिछले के तो माफी होंगे, एडवांस में ही गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा। जब आपने नहीं किया है आगे करेंगे तो पहले से माफ है। पहले से गुनाह कैसे माफ होता है इसको समझना है तो आप वो हदीस समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बद्र के बाद कहा कि अल्लाह ताला ने तमाम बदरी सहाबा को बख्श दिया, सब जन्नती। बद्र में जिन सहाबा जिन मुजाहिदीन ने शिरकत की वो सब बख्शे बख्शाए मकबूल लोग, सबकी बख्शिश हो गई। बख्शिश होने का मतलब ये कि पिछले गुनाह से माफ, अब अगले गुनाह इनकी आखिरी सांस तक अगर कुछ गलती होगी तो भी अल्लाह ने एडवांस में माफ कर दिया। हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे और उन्हीं बदरी सहाबा में से एक सहाबी ने जासूसी कर दी, उस बात को, उस प्लान को लीक कर दिया और मक्का वालों को आगाह कर दिया। एक खत लिख के भेज दिया मक्का वालों को, एक औरत को दिया और कहा कि जाओ मक्का वालों को पहुंचा दो। मकसद यह था कि उनके बाल बच्चे मक्का में फंसे हुए थे, सोच रहे थे कि मैं उनको आगाह कर दूंगा, इतनी रात की बात बता दूंगा तो मेरे परिवार की रक्षा करेंगे वो लोग। वरना अल्लाह के नबी से उनको भी मोहब्बत थी, इस्लाम से मोहब्बत थी। उनका इरादा था कि छोटी सी बात बता दूंगा उनके लिए बड़ी है और हमारे पास तो अल्लाह ही, क्या बिगाड़ लेंगे इतना बता रहे थे। यानी ये खबर मैं लीक कर दूंगा तो हमारे तो कुछ बिगड़े नहीं, हमारा कोई लॉस तो है नहीं, हमारे साथ अल्लाह है, नबी है, लेकिन बेनिफिट ये है कि हमारे बच्चों की वो लोग रक्षा करेंगे। लेकिन ये बात ठीक नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आमीन ने अल्लाह के नबी को बता दिया कि आपकी ये खबर लीक हो रही है। एक खत देख के एक औरत के हाथ भेजा गया। अल्लाह के नबी फौरन अली रजी अल्लाह अन्हु को सहाबे कराम को दौड़ाया, जाओ पकड़ के लाओ उसको, खत छीन के लाओ उससे, औरत जा रही है। अब ये सहाबे कराम गए और औरत को पकड़ा रास्ते में और कहा खत निकाल के दो, तो कहती मेरे पास कोई नहीं है। सहाबे कराम ने कहा हमारे नबी ने कहा है निकालो नहीं तो नंगा कर देंगे, तुमने कहीं तो छुपा के रखा है, किसी और आदमी ने नहीं कहा है, हमारे नबी को अल्लाह की तरफ से बताया गया, हमारे नबी ने कहा तो है तुम्हारे पास, चुपचाप निकाल दो नहीं तो हमें मजबूर के आगे बढ़ के कार्रवाई करना पड़ेगा। तो अपने बदन में छुपा के रखी थी, बहुत प्राइवेट जगह थे, उसने निकाल के दिया, उस खत को निकाल के दिया, सहाबे कराम लेकर आए। अब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, कहा ये तो मुनाफिक हो गया, आप इजाजत इसकी गर्दन उतार दो, हमारे इतने राज को डर भेज रहा है। अल्लाह के रसूल ने डांटा, कहा तुम्हें पता नहीं कि ये वो सहाबी है जो जंगे बदर में शिरकत कर चुके थे, अल्लाह ने एडवांस में उनके सारे गुनाह माफ कर दिया है, इनके खिलाफ तुम जबान नहीं खोल सकते। आप सोचें कि इतनी बड़ी कोताही और इतना बड़ा राज उधर ट्रांसफर कर दिया, वो तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन इतने बड़े इकदाम पर, इतनी बड़ी जासूसी पर अल्लाह के नबी कहने इनके खिलाफ जबान नहीं खोल सकते, क्योंकि ये काम कितना भी गलत हो लेकिन अल्लाह ने एडवांस में माफी दे दी है, हम इनको कुछ नहीं बोल सकते। इसको बोलते हैं एडवांस में माफ कर देना। तो ये जो अरफा का रोजा है ना, अस्सनत अल्लती क़ब्लहू वस्सनत अल्लती बाद, पिछले एक साल के गुनाह तो माफ होते ही है, अगले एक साल के एडवांस में अगर हम जिंदा रहे तो अल्लाह ताला ने वो गुनाह एडवांस में भी अल्लाह ताला माफ कर देता है। ये बहुत फजीलत की चीज है। कितना बेहतरीन मौका आपको किसी और पूरे साल में कहीं किसी और दिन में नहीं मिलेगा कि एक रोजे का, सिर्फ एक रोजे का इतना बड़ा सवाब मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इसको रखना चाहिए। तो ये कुछ मखसूस आमाल हैं जो मखसूस दिनों में हम कर सकते हैं। हज है, कुर्बानी है, अरफा का रोजा है, और इन दोनों हिस्सों को मिलाएं तो ये कुल वो आमाल है जो हम इन दिनों में कर सकते हैं। अशरे ज़िलहिज्जा में 10 दिनों में अमल मैंने 2 किस्में की थी, जो पूरे 10 दिनों में करना है और कुछ अलग अलग दिनों में हमें अंजाम देना है। ये हमारे मौजू का दूसरा हिस्सा। आगे बढ़ते हैं हमारे मौजू का आखिरी हिस्सा, और उस पर हम इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन 10 दिनों में होती हैं हमारे यहाँ, हमें वो नहीं करना चाहिए। उसकी भी हम कई कैटेगरी कर सकते हैं कि कुछ बिदात हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बिदात तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल वो जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिदात की हम बात करें कि इन महीनों की बिदात, यानी इन 10 दिनों में बिदात क्या होती है, तो बहुत सारी बिदात में देखिए, पहली चीज क्या है, हज से मुतालिक बिदात। इन्हीं 10 दिनों में हज होते हैं, तो हज से मुतालिक बहुत सारी बिदात और खुराफात लोगों में राइज, लोगों में आम, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम उन बिदात में जाएंगे तो सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा।
اب جو لوگ، اور یہ مسئلہ ان سے متعلق ہے جو حج کو جا رہے ہیں، سب کے لیے نہیں، اس لیے حجاج کو اس بارے میں سیکھنا چاہیے کہ حج میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ جو بدع الحج، حج کی بدعت ہے. دوسری بدعت کیا ہے؟ قربانی سے متعلق کچھ بدعت جو ان 10 دنوں میں ہم انجام دیتے ہیں قربانی سے متعلق. مثال کے طور پر یہ کہ قربانی کا جو جانور ہے، اس جانور کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں من گھڑت عقیدہ رکھنا. جیسے ابھی دونار میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے لوگ بکرا خریدنے کے لیے، تو ہمارے بعض کچھ مسلمان ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کس بکرے پہ اللہ لکھا ہے، کس پہ محمد لکھا ہے، کس پہ احمد لکھا ہے، اس کی قربانی کرنے سے ثواب زیادہ ہو جائے گا. اور وہ لوگ بھی اچھا خاصا اس کا ریٹ لگاتے ہیں. پتہ نہیں وہ ڈیزائن کر کے خود ہی لکھا گیا ہے یا ایسے اتفاقاً کوئی ایڑی ٹیڑھی لکیر ہوتی ہے اور آدمی اس کو بنا دیتا ہے. بھائی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں، ٹیکنالوجی اتنا آگے ہے کہ بھائی کچھ بھی کیا سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے جو لکیر ٹیڑھی میڑھی رکیل ہے اور آپ کے دماغ میں کسی نے بٹھا دیا کہ یہ احمد دکھ رہا ہے. احمد نہیں ہے لیکن دکھ رہا ہے. ایسے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ چیز پہلے اولے والا میں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی حرف نہیں دکھائی دے، کوئی لفظ تو ورڈ نہیں دکھائی دے گا. لیکن جب کوئی آپ کی ذہن سازی کر دے، آپ کا مائنڈ سیٹ کر دے کہ دیکھو یہ ایسا ایسا، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ فلاں ہے، اب دوبارہ وہ دیکھے گا کہ ہاں یار دکھ رہا ہے. جیسے ایک خرافات ہمارے یہاں عام ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کیوں ہوتا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ محمد کی شکل میں ہوتا ہے. محمد کی شکل میں سجدے میں ہوتا ہے. کبھی آپ نے دھیان دیا؟ آپ نے تو ہزاروں لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی وہاں محمد لکھا ہوا آپ کو دکھا؟ نہیں دکھا. لیکن اب ایک بندہ آپ کو بیٹھ کے ذہن سازی کرے گا، ایک کو سجدہ کرائے گا، کہے گا یہ سجدہ کیا، اس کی جو منڈی ہے نا یہ نیم ہے، پھر اس کی جو کمر جا رہی ہے ہاں ہے، پھر ہاں پلٹ کے یہاں آیا یہ نیم ہوا، پھر آگے پیر اس کا دال ہے. ایسے جب اس کو ڈیزائن کر کے بتائے گا کہ دیکھیے محمد لکھا ہوا دکھ رہا ہے، تو سجدہ کیا ہوا. اب دوبارہ دیکھے گا ہاں یار تو کہ محمد دکھ رہا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے کسی کے مائنڈ کو ہائیجیک کرنے. آپ کا پہلے آپ کا مائنڈ خالی تھا، ٹھیک تھا، تو کوئی دکھ نہیں رہا تھا، لیکن آپ کا ذہن ایسا سیٹ کر دیا کہ آپ کو سجدہ کرنے والا شخص محمد کی شکل میں دکھ رہا ہے، تو محمد لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے. ایک سے خرافات، ایک سے بکواس. آپ سوچیں تو ایسے ہی کچھ ایڑھی ٹیڑھی لکیریں ہوتی ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کا اللہ محمد لکھا ہوا. تو کچھ بھی ہو، چاہے قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہو یا قدرتی طور پہ، تو اللہ تعالیٰ لکھے گا نہیں. اللہ کا لفظ اس کا قابل احترام ہے، اور یہ الفاظ ان کی بے حرمتی ہے کہ جا کے کسی کی کھال پہ لکھ دے، پتہ نہیں چمڑا کہاں جائے گا، وہ کدھر بیٹھے گا، پاکی میں ناپاکی میں. یہ مطلب کیسی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کسی بکرے کی جسم پہ یہ سب لکھے. ان الفاظ کی بے حرمتی ہے نا. کسی انسان کا نام لکھ دے کسی بکرے کے، اس کو بھی چڑ ہوگی، پسند کرے گا کوئی؟ اس کو بھی اپنی توہین محسوس ہوگی کہ ہمارا نام اس میں لکھ دیا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے گا، کیسے کرے گا. تو یہ یا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو لوگوں نے خود بنایا ہے، یا اتفاق سے کچھ لکیریں ہیں جس کو مائنڈ میں سیٹ کر دیا گیا کہ وہ اللہ محمد لکھا ہوا، جبکہ وہ نہیں ہے، اللہ محمد نہیں ہے، ایسے بتا دیا گیا کہ لکھا ہوا. سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی خرافات کہ ایسے بکروں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ ان کی قربانی کا ثواب زیادہ. اور یہ مسلمان، میری سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی جہالت ہے کہ کیسے لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں. آپ کی جیبیں خالی کر رہے ہیں بھائی، آپ کو لوٹ رہے ہیں لوگ، اور آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ دے کے بکرا خرید کے لاتا ہے. ایک مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے ہیں، نانی ماں بھرتی ہے، اب بکرا خرید کے لائے گا 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا. کیوں؟ اللہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے. اور جو مسجد کا امام روز آنا اللہ محمد تم کو سناتا ہے، قرآن پڑھ کے بتاتا ہے، جس میں حقیقت میں اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں. بکری کی بڑی ویلو ہے، چمڑے کو لکھ دیا اللہ محمد. شرم نہیں آتی اس قوم کو؟ کیسا بیوقوف کو بنا رہا ہے، ٹھگ رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، جس پیسے پر کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا عذاب ہے، بدعت ہے. جہاں ثواب ہے وہاں پیسہ نہیں. جب مسجد کی تعمیر ہو بڑی مشکل سے پیسہ نکلے گا، لیکن بدعت و خرافات میں کیسے پیسہ نکلتا ہے؟ آپ دیکھیں، روئے زمین کی سب سے بہترین چیز، بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا گھر ہے. یہ مسجدیں ہیں. مسجدوں میں تھوڑی بہت وصولی ہوتی ہے پیسوں کی،
कि मस्जिद का मैनेजमेंट जो है, मस्जिद का जो सिस्टम वो चले, लेकिन आप देखिए कि लोगों की जेब कितनी भारी होती है। वो 10 रुपया भी निकालेंगे तो इतने तकलीफ से निकालेंगे, और वो भी फटी पुरानी नोट निकालेंगे। इस मस्जिद की बात नहीं कह रहा हूं, हर मस्जिद की बात, हर मस्जिद का वही हाल है। लेकिन यही इंसान जो होटल में जाके बैठेगा तो पैसा, 2-3 दोस्त बैठेंगे तो पैसा देने के लिए झगड़ा होगा, मैं पेमेंट करूंगा कि मैं करूंगा। 1000 का बिल आया है लेकिन दोनों झगड़ा करेंगे, वो कहेगा मैं दूंगा, वो कहेगा मैं दूंगा। ये होटलों में 1000 रुपया देने के लिए पेमेंट करेंगे, झगड़ा करने वाले, यहां इनसे 10 रुपया नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो सबसे बदतरीन जगह है बाजार, वहां शैतान तुम्हें छूट दे के रखता। यहां जब बंदा अल्लाह की राह में निकालना चाहता, शैतान चमते उसका हाथ पकड़ लेता। उसका हाथ इतना भारी है कि शैतान इस दिलों में खौफ डाल रहा है, तुम फकीर हो जाओगे, लुट जाओगे। यही दिमाग में आता ना कि अगर हमने मस्जिद में देख लिया तो हम लुट जाएंगे, और उधर दौरान में जाकर 2 लाख का बकरा लेकर आएगा, नहीं लुटेगा, क्योंकि शैतान उसको बेवकूफ बना रहा है। हम अपने आप को तोले, देखिए कि अल्लाह की राह में जहां पैसा खर्च करने का कोई मसला ही नहीं है, सवाब है पूरी दुनिया की नजर में, वहां हमारे हाथ नहीं निकलते। जहां हराम ना जाए, बिदात खुराफात, वहां बेतहाशा पैसे लुटाते हो। तो ये बिदात है मेरे भाइयों। ऐसे जानवरों के बारे में ये तफाद रखना कि बल्कि ऐसे जानवरों का बाइकाट कर देना चाहिए, समझ रहे? मैं भी दोनार में जाके देखा, वो काफी बादाम खिला रहा है उसको, बताइए ऐसा देखो बना के रखा, तो गद्दे में खड़ा करके रखा हुआ उस बकरे को, और काजू बादाम उसको खिला रहा है। ये कौन मुसलमान जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, कुरान दिया, हदीस दिया, इसकी ये हालत की कोई भी लल्लू पंथी जाके देखो बड़ा, कोई भी तुम्हारे दिमाग को हाईजेक कर ले। तुम्हारे पास कुरान है, हदीस है, अल्लाह का नूर है, इल्म की रोशनी है, उसके बावजूद भी कैसे कोई बेवकूफ बना सकता है? बाइकाट करना चाहिए ऐसे बकरों का और ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। उनकी वो हालत कर देना चाहिए, खाली वापस लेके जाए घर, उनको फ्री में नहीं लेना चाहिए, पैसा देके तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनके ये बदअकीदगी पर ताउन में मदद है। तो ये मेरे भाई बिदात खराब। वक्त नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कुछ और गिना देता हूं। एक और बिदात हमारे यहां में, वो क्या है? तकबीरात से मुतल्लिक है कि नमाजों के बाद बुलंद आवाज में सब एक साथ तकबीर बोलेंगे। शेख हलवानी रहमुल्लाह ने इसको बिदत का, शेख मुकबिल बादे रहमुल्लाह ने कहा है कि इसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। ये बदतरीन बिदत है जो तकलीदियों ने ईजाद की है, जो मुकल्लिदीन ने ईजाद की है, चारों मसलक वालों ने मिलकर इस बिदत को ईजाद किया। अहले हदीस इससे बरी है, अहले हदीस को इस बिदत पर अमल नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कह दिया कि पूरे 10 दिनों तक, बल्कि अय्याम तशरीक के आखिरी दिन तक हमें तकबीर कहनी है। सुबह शाम चलते फिरते तकबीर को कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं, जब सलाम फेरेंगे तो सब एक साथ तकबीर कहेंगे, ये क्या करेगा भाई? ये किसी ने कहा आपको? सलाम फेरने के बाद तो जिक्र अज़कार होता है। सलाम फेरने के बाद जो सिखाया गया है जिक्र अज़कार, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, और दूसरे अज़कार बहुत सारी मस्जिदों में लटका रहते हैं, यहाँ भी होता होगा, क्या कहते क्या वो पढ़े आप। उसके बाद आप रास्ते में जा रहे, घर जा रहे, पढ़ते रहे तकबीर आप। लेकिन ये जो सलाम फेरती बुलंद आवाज में एक साथ पढ़ना, ये बदतरीन बिदअत है जो मुक़ल्लिदों ने ईजाद की। चारों मसलक वालों ने मिलकर इस बिदअत को ईजाद किया। लेकिन अहले हदीस को इसे अमल नहीं करना चाहिए ना। अहले हदीस किसी भी बिदअत की झांसी में इसको नहीं आना चाहिए। ये खुराफात है, ना कुरान से दलील है, ना हदीस से दलील है, ना सहाबा से दलील है। ये जो नमाज के बाद इज्तिमाई शक्ल में तकबीरात पढ़ना, ये ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा के अमल में। फिर हमारे लिए क्या दिन? हमारे लिए दिन नहीं है कुरान हदीस और सहाबा, जो वहां से नहीं मिल रहा है तो 4 मिनट 40 मिनट के बोले, हमारे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं। तो ये भी जो है बिदात खुराफात। बिदात के अलावा और भी वो चीजें हैं, लेकिन मैं एक और चीज जिक्र करके बात खत्म करता हूँ, वरना हम तो बहुत सारी चीज जिक्र कर सकते हैं जो बिदात है, गैर मुनासिब है, लेकिन वक्त नहीं है। एक और चीज जिसको बहुत ज्यादा ले दे होती है, जिसको लेके हमने कहा ना अरफा का रोजा। अब अरफा का रोजा 8 को रखना है या 9 को रखना है, इसको लेके भी जो है काफी बहस होती है मेरे भाई। इसमें भी जो लोग ये कहते हैं कि सऊदी अरब के हिसाब से हम अरफा का रोजा रखेंगे, ये नई ईजाद करदा चीज है, सलफ में इसका कोई वजूद नहीं था। अल्लाह के नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जो दूसरी जो है रुयत वाले हैं, जिनका जो है मतला अलग है, दूसरे मतले वाले हैं, उन लोगों ने वहां की रुयत को फॉलो किया हो, ऐसा नहीं मिलता। बल्कि ऐसा सही मुस्लिम हदीस में यह मिलता है कि शाम की रुयत को मदीना वालों ने फॉलो नहीं किया। नहीं, रमजान में जब चांद देखा जाता है तो 1 महीने का टाइम होता है, यानी 1 महीने तक वहां से कोई सफर करके किसी और एरिया में गया तो बता सकता ना कि हमने चांद कब देखा, और वहां वो लेट से चल रहे हैं, यानी 1 दिन देर से चल रहे हैं। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चांद देखा और रमजान शुरू हो गए। अब वहां से सफर करके मदीना में आए,
अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि भाई चांद तो एक दिन पहले देखा गया। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा नहीं, हम उनका एतबार नहीं करेंगे, हमने जिस दिन देखा उसी एतबार से हम चलेंगे। और कहा हाँ कदा हमारा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसे ही हुक्म दिया। तो ये बात भी नहीं है ना, पहले की नहीं थी। ये 10 दिन यानी चांद निकला और जो है 9 दिन का रोजा, यानी पूरा 8-9 दिन आता बीच में। इस 9 दिन में उस जमाने में भी आदमी सफर करके कहां से कहां पहुंच जाता था। आगे जाके बता सकते थे ना मक्का से कोई सफर करके निकला कि हमने जो है चांद कब देखा है, लेकिन कभी भी वहां की रोज को दूसरे लोगों ने फॉलो नहीं किया। इसलिए हमें तारीख के हिसाब से ही, हमारे यहाँ जब 9 तारीख आए उसी हिसाब से रोजा रखना चाहिए। लेकिन ये कहना कि नहीं हमें एक दिन पहले, ये बेकार है। वो जो 2 साल का साल है उसे बर्बाद करने वाली बात। और अगर आप कंफ्यूज हो तो चलो पूरा 9 दिन का रोजा रख लें, उसमें 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, सब आ गया। लेकिन ये कि हम 8 तारीख को रोजा रखेंगे, ये तरीका ठीक है भाई। 9 तारीख को रखना चाहिए वही सही, या आप कंफ्यूज हो तो आप पूरा रख लो, तो मसला नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हम बात खत्म करते हैं। मैंने आपके सामने 3 चीजें रखी हैं। इन 10 दिनों के फजाइल क्या है, इन 10 दिनों की इबादत क्या है जो हमको करना है, तो दूसरी चीज, और तीसरी चीज इन 10 दिनों की बिदात क्या है जो हमको नहीं करना। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिरु दाअवाना